Thank you. Very good morning, Amir. Uh, okay. So in the previous session, we started with the mobile IP. Okay, as you can see on the slide. Let me take a quick revision. Okay, so we started with the mobile IP, and then we saw why mobile IP is required. Okay, why mobile IP is required. Then we came to know that we cannot use internet connection, we cannot use the packet data, we cannot use the internet. Okay, which was configured at home, we cannot use it outside. Okay, हम घर पे बैठ के मोबाइल आज से 20 साल पहले की 25-30 साल पहले की बात, so we are able to use internet at our home which was configured already. But when we go outside with our laptop, with our mobile phone, with our mobile devices, okay, with our devices simply, then we will not be able to use the internet outside. So what we can do so that it will the things will be possible, like we can use the internet outside also. Okay, so people come up with a different solution. Okay, we saw the quick solution 1, quick solution 2, quick solution 3. Then we came up with some standards, some architecture. Okay, some proprietary system finally led to the mobile IP as a standard to enable the mobility. Okay, इस mobility को manage करने के लिए, इस mobility को enable करने के लिए, you know what is mobility? If you are able to use the internet at home, then on the move, if you are moving from one location to another location, then you must be able to use, you should be able to use your internet outside also. Okay, that's a mobility. Okay, so mobility must be enabled and must be, supported in that particular situation. Okay, so our mobile IP was having few requirements like compatibility, then transparency, then efficiency, then scalability, then last में security. Okay, so we saw this 5 requirement of the mobile IP जो कि हमारे mobile IP में होना चाहिए. Okay, then after that we came to the goal. Okay, the goal of the mobile IP can be summarized as we have to support the end system. Okay, whatever end system we have, that is we have the mobile devices, laptop. Okay, whatever devices we are using outside the home or outside the home network, we are using for using the internet, for surfing the internet. Okay, so supporting these end system mobility. Okay, so if we are able to use the internet at home, then we must be able to use the internet at outside also with the help of all those devices or with the help of all those end system. Okay, we used to say end system. Okay, so supporting end system mobility, एंड सिस्टम की मोबिलिटी मतलब एंड सिस्टम को सपोर्ट करना है मोबिलिटी के टर्म्स में, while maintaining the scalability. We may have number of devices working outside, so we must be able to provide the services to all the devices. Okay, then it must be efficient also. And जो existing system है वो risk में नहीं आना चाहिए, efficient होना चाहिए. And compatibility. Okay, it should not have the condition like if you are going to use the internet outside, then you have to use the Opera browser only, and you have to use the iOS operating system only. You can use the internet in Apple phones only. So there should not be any kind of compatibility. Okay, so there should not be any kind of restriction. Sorry, there should not be any kind of restriction. So it must be compatible with all the platform, with all the operating system, with all the browsers, with all the network service providers. Okay, so each and every term, each and every aspect, it must be compatible in all respect with existing application and internet protocols. Okay, so whatever infrastructure for network we are having right now, so it must work in that particular environment only. Okay, so it was the goal of mobile IP. Okay, then we came to the entities and terminologies. Then we saw we have different entities, like we have mobile node. Okay, now we have to see the scenario. Okay, everyone just focus over here. So we have the scenario like we have mobile node, a node which is moving from one location to another location, which is on the move, which is on the move. So I will call it as a mobile node. Okay, then we have correspondent node. अब अब मोबाइल नोड से बात करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए. तो जो दूसरी जो कम्युनिकेशन पार्टी है उसको हम लोग ने नाम दिया है करस्पॉन्डेंट नोड, सीएन. ओके, तो एमएन सीएन, ये दो लोग बात करेंगे. उसके बाद में आते हैं आपके होम नेटवर्क की. ओके,
The home network is the network or is the subnet or is the network in which your mobile node has first registered. Okay, उसने पहले मतलब उसका जो पुराना घर है, उसका जो पहला जो मतलब जो घर है, उसका अपना घर है, वो होम नेटवर्क है। ठीक है, अगर वो मूव कर ओके, अगर वो मूव करके किसी और लोकेशन में जाता है, अगर वो मूव करके किसी और लोकेशन में जाता है, देन दैट नेटवर्क विल बी दी फॉरेन नेटवर्क फॉर द पर्टिकुलर मोबाइल नोड। आपको पता है आप कहाँ रहते हो, आप इंडिया में रहते हो, मुंबई में रहते हो, पनवेल में रहते हो। ओके, सो दैट्स अ होम नेटवर्क फॉर यू। okay, because you are initially registered for that network only. okay, and when you go outside, आप यहाँ से बेंगलोर चले गए, आप यहाँ से चेन्नई चले गए, ओके, किसी और लोकेशन पे चले गए, इवन आप यहाँ से मूव करके थाना कल्याण चले गए, so that will be the foreign location or foreign network for you because you are initially registered for the, initially आप पनवेल के थे, ठीक है, तो initially you were registered for the पनवेल, but now you are in the foreign network. okay, तो आप कुछ देर के लिए गए हो, बाद में तो आपको आना अपने होम लोकेशन पे ही है। ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी परमानेंट शिफ्टिंग। ठीक है, हम जिस बात कर रहे हैं कि भाई कुछ का भी जरूरत है, मोबाइल नोड एनी पर्सन एनी यूजर कैन गो आउटसाइड ऑफ इट्स होम। ठीक है, अब मैं घर पर हूँ, मैं यहाँ से लोकेशन मूव करके मैं किसी दूसरी जगह गया, थोड़ा काम था, काम करके मैं वापस आ गया, सो इट वॉज द फॉरेन लोकेशन फॉर मी, फॉरेन नेटवर्क फॉर मी, बट दैट विल बी द होम नेटवर्क फॉर मी। ओके, जहां पर मैं रह रहा हूँ दैट विल बी द होम नेटवर्क। ओके, तो जहां पर हूँ वो होम नेटवर्क, जहां पर घूमते घूमते जाऊंगा वो है फॉरेन नेटवर्क। देन उसके बाद में जब फॉरेन नेटवर्क में जाऊंगा तो वहां पर कोई ना कोई बंदा होगा कि जो मेरी मदद करेगा, जो मुझे सपोर्ट करेगा। ओके, सो जो सपोर्ट करने वाला बंदा है वो है मेरा फॉरेन नेटवर्क। ओके, सॉरी फॉरेन एजेंट। ओके, फॉरेन एजेंट। अच्छा, वैसे ही जैसे मैं अपने होम लोकेशन में था तो वहां पर कोई ना कोई डिवाइस है, कोई ना कोई बंदा है जो मुझे असिस्ट करता था। ठीक है, जो मुझे हेल्प करता था, जो मुझे सपोर्ट करता था, सो दैट विल बी द होम एजेंट। ओके, मेरे होम नेटवर्क के अंदर जो एजेंट मुझे सपोर्ट करेगा, जो बंदा जो नोड मुझे सपोर्ट करेगा वो मेरा होम एजेंट। ओके, मैं किसी फॉरेन नेटवर्क में चला गया, इन दैट पर्टिकुलर फॉरेन नेटवर्क, if any agent or any person, any node, any terminal is supporting me, is any node is supporting me, then that will be the foreign agent। तो foreign agent उधर पे, home agent इधर। ठीक है, अच्छा, आप आप चले गए फॉरेन नेटवर्क में कुछ काम से। ठीक है, तो फॉरेन नेटवर्क में राइट नाउ यू आर। ठीक है, सो जो फॉरेन एजेंट का जो एड्रेस होता है, दैट एड्रेस इज नथिंग बट द केयर ऑफ एड्रेस। ठीक है, so I'll show you the diagram. The diagram will let you know each and everything. So this is my, mobile node. So first of all, this is the home network. Okay, I'm repeating all this thing because we have to understand the later part now. So I'm repeating all this thing again and again. और एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो literally this question is very simple and I want you to answer, all of you to answer this question. Okay, कम से अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, after completion of this topic we'll see all the papers that how many times this question has been asked. Okay, so you will find कि हाँ सर इतना सिंपल क्वेश्चन है और 10 मार्क के लिए आ जाता है, so it is very good, it's an opportunity for us to earn the marks. Okay, so मोबाइल आईपी का बहुत अच्छे से आप लोग अगर कर लेंगे तो इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन तो एग्जाम में आता है। ओके, so this is my home network. Okay, हाँ है, हाँ यहाँ पर है। ठीक है, सो दिस इज माय होम नेटवर्क। ओके, और होम नेटवर्क के जो अटैच में जो एजेंट है, सो दैट इज द होम एजेंट। सो होम एजेंट विल बी वर्किंग इन द होम नेटवर्क। ओके, सो दैट होम एजेंट मे बी एनी राउटर। ओके, सो वो कोई राउटर रहेगा जो कि यहाँ पर आई टोल्ड यू दैट लास्ट टाइम के भाई ये हमारा क्या है, सिक्योरिटी गार्ड है। ओके, which is taking care of the home network. Okay, I have this foreign network. Okay, I have this foreign network. So this in this foreign network, this foreign agent will be working. Okay, and the address of this foreign agent will be the care of address। आपको पता है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया लास्ट टाइम पे। पहले हमारे कुछ सालों पहले, बहुत सालों पहले जब हमारे घर पे यानी कि मोबाइल फोन वगैरह नहीं थे, हमारे घर पे मोबाइल फोन वगैरह नहीं होते थे, या किसी के घर पे अगर लैंडलाइन भी नहीं होता था, सो वी यूज्ड टू गिव द केयर ऑफ एड्रेस। ठीक है, और कहीं पर फॉर्म वगैरह में फिल करना होता था, जैसे कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे, तो हम लोगों ने केयर ऑफ एड्रेस लिखे थे बिकॉज वी वर नॉट हैविंग मोबाइल फोन्स और लैंडलाइन फोन्स हमारे पास में नहीं थे, तो फिर हम किसी का और का एड्रेस देते थे, बाजू वाले का। जब हमारा कॉल आता था तो हम लोग को बुलाने आते थे, सो इट वॉज अ केयर ऑफ एड्रेस।
तो ये ऐसा आपका केयर ऑफ एड्रेस है जो कि आपके फॉरेन एजेंट का एड्रेस होता है, बेसिकली उसी को केयर ऑफ एड्रेस बोलते हैं। ओके, so this in this situation it has been displayed that your mobile node ideally it should be present inside the home network. Okay, so your mobile node your user must be present in the home network, लेकिन किसी काम से आपका आपका जो यूजर है वो घूम फिर के चला गया आपके ऐसे नेटवर्क में, मतलब कोई जो कि होम नेटवर्क नहीं है। ओके, ये उसका होम नेटवर्क था, यहाँ से घूम फिर के वो चला गया फॉरेन नेटवर्क में। ठीक है, अच्छा नाम फॉरेन नेटवर्क क्यों पड़ा? बिकॉज दैट इज नॉट द होम नेटवर्क। तो होम नेटवर्क को छोड़ के जितने भी नेटवर्क है वो उस यूजर के लिए फॉरेन नेटवर्क बन जाएंगे, राइट? So now this is the foreign network का एरिया। सो योर मोबाइल लोड इज घूमिंग ओवर हियर। ठीक है, ये घूम रहा है बेचारा यहाँ पर अभी। ठीक है, काम से आया था या घूमने आया था जो भी, तो यहाँ पर ये घूम रहा है। अब यहाँ पर हमारा करस्पॉन्डेंट नोड, यू कैन सी सीएन ओवर हियर। ओके, वन राउटर इज कनेक्टेड, शो करने के लिए कि भाई हाँ उसके उसके पैकेट्स को फॉरवर्ड करेंगे। अब सीएन भाई साहब को कुछ काम पड़ा मोबाइल नोड को कुछ सेंड करने के लिए। ओके, उसको कुछ कम्युनिकेट करना है, उसको कुछ डेटा सेंड करना है, सिग्नलिंग करना है। ठीक है, सो your CN, that is your correspondent node, will send a message or will send the data to the mobile node. Okay, अब CN को क्या पता है? The location of the user is in the home network. Okay, और आपका पैकेट कैसे जाएगा? आपका पैकेट आइडियली इट शुड गो लाइक दिस वन। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू होते 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 जाएगा इसके बाद में। तो आपका जो होम एजेंट है, जो कि राउटर आपके होम नेटवर्क को कनेक्टेड है, दैट्स अ होम एजेंट। तो होम एजेंट उसको रोक लेगा, भाई रुक जाओ, किससे मिलने का है आपको? वो बोलेगा भाई मुझे तो आपके यूजर से मिलना है, यूजर एक्स वाई जेड से मिलना है। ओके, तो बोलेगा भाई वो तो है नहीं घर पे। ठीक है, वो तो है नहीं घर पे, तो वो तो कहीं बाहर गए कुछ काम से। तो अब ऐसा तो नहीं है कि ये पैकेट अपने पास में लेके रख ले और जब आए उसको हैंड ओवर कर दे, ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं है। ठीक है, जब पैकेट निकला है सोर्स से, दैट्स अ सोर्स फॉर मी। ओके, सो इट इज द सोर्स फॉर मी। ओके, अगर पैकेट निकला है सोर्स से तो उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचना ही पहुंचना है, एंड इन एनी हाउ। ठीक है, इन एनी कंडीशन इट हैज टू रीच द डेस्टिनेशन। अब ये भाई साहब के पास में एड्रेस भी रहेगा कहाँ गए, भले भाई वो तो भाई थोड़ा सा फला फला जगह पे गए हैं। ठीक है, तो वो एड्रेस उसके पास में मिल गया। ओके, वी हैव अ टनल वी हैव अ टनल विच कनेक्ट दी होम एजेंट राउटर एंड फॉरेन एजेंट राउटर। We have home agent router and foreign agent router. Okay, so we have a tunnel over here. Okay, so your packet will be encapsulated over here. ठीक है, आपका पैकेट तो ऑलरेडी पैक्ड होके आया था, तो पैकेट आपका होम एजेंट के पास पहुंचा। तो ये रहा आपका पैकेट। मैंने ये डायग्राम आपको पिछली बार भी बताया था, बट मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, इसके लिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा एक बार और ये चीज समझ में आ जाए। ठीक है, भले हमें थोड़ा टाइम जाए लेकिन चलेगा, लेकिन आपको एक बार और समझना चाहिए। ठीक है, जब एक बार अच्छे से समझ गए ना, तो आप लोग खुद से लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, एंड आई होप सो कि इतना भी होने के बाद में आप लोग खुद से आराम से लिख सकते हैं एक बार होने के बाद, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है और मैं चाहता हूँ कि इसका सब लोग इसका आंसर लिख पाए। ओके, so now your packet which was coming from this correspondent node and it want to go to the mobile node. Okay, अच्छा इसका नाम मोबाइल नोड क्यों पड़ गया? ये हालांकि सिंपल नोड है, बट ये क्या कर रही है? ऑन द मूव है। ठीक है, ये चलते जा रही है। यहाँ आपका होम नेटवर्क में था पहले बंदा, और ये बेचारा चल चल के यहाँ पर पहुंच गया, तो इसको मैं अभी नाम इसका मोबाइल नोड पड़ गया। ठीक है, तो ये मेरा मोबाइल नोड आपसे इसको मैं बोलता हूँ। सो आपका जो पैकेट जो आया था वो आइडियली यहाँ पर आया। आने के बाद में होम एजेंट ने बोला भाई यहाँ तो है नहीं, अब एक काम करो, वो गया है फला फला लोकेशन पे। तो अभी क्या करेगा? वो अपना पैकेट लगाएगा। ठीक है, इनकैप्सुलेट करेगा, यहाँ पे इनकैप्सुलेशन होगा। अच्छा, ये जो पैकेट आया था, इस पैकेट के अंदर सोर्स एड्रेस क्या है? सोर्स एड्रेस है करस्पॉन्डेंट नोड का। इसमें डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है? आपके होम नेटवर्क का, बिकॉज उसको मालूम है इसका होम नेटवर्क ये है, तो डेस्टिनेशन एड्रेस इसका है। ओके, ये होने के बाद में, ये होने के मतलब होम नेटवर्क का बोले तो उस मोबाइल नोड का। ठीक है, क्योंकि उस मोबाइल नोड का भी कुछ ना कुछ आईपी रहेगा, तो मोबाइल नोड का है। सो दैट मोबाइल नोड का आपका डेस्टिनेशन है और सीएन आपका क्या है? सोर्स है। अब वो इसके अंदर है, बट अब आपका क्या हो रहा है? अब आपके पैकेट को फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका आईपी, आईपी पैकेट को फॉरवर्ड करना। तो ये आपका पैकेट है, इस पैकेट को हम लोग क्या कर रहे हैं? वाया टनल हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इसके ऊपर ये क्या करेगा? होम एजेंट क्या करेगा? अपना
ठप्पा लगाएगा, अपना सोर्स लगाएगा। सोर्स कौन है? होम एजेंट है नाउ। ओके, डेस्टिनेशन कौन है? डेस्टिनेशन फॉरेन एजेंट है। ठीक है, फॉरेन एजेंट मतलब कि बेसिकली मोबाइल नोट का है यहाँ पर। ठीक है, सो मोबाइल नोट का यहाँ पर आपका डेस्टिनेशन है, तो लगा दिए सोर्स, लगा दिए आपका डेस्टिनेशन। ठीक है, अब ये इनकैप्सुलेट हो वापस, यानी कि पैकेट के ऊपर और पैकेट हो गया। ठीक है, इसको आईपी इन आईपी भी बोलते हैं, आगे चल के कॉन्सेप्ट है वो आप लोग को शायद नहीं है सिलेबस में, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है आईपी इन आईपी, द पैकेट के ऊपर और एक पैकेट लगाना। ठीक है, सो यहाँ पर आपका जो है ना पैकेट के ऊपर और एक पैकेट लगा, और उसके ऊपर सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस चेंज कर दिए, सोर्स यहाँ का डाल दिए और डेस्टिनेशन मोबाइल नोट का डाल दिए। ठीक है, तो ये आपका सोर्स चला गया होम एजेंट का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। होम एजेंट हमारा सोर्स है और डेस्टिनेशन हमारा फॉरेन एजेंट है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो गुफा है, जो हमारी टनल है, वो टनल यहाँ से यहाँ तक जाती है। ठीक है, अब आपके होम एजेंट ने उस पैकेट को टनल में रख दिया। अब एक टनल से आपका पैकेट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये पहुंचा आपका पैकेट सीधे फॉरेन एजेंट के पास में। एड्रेस क्या था? केयर ऑफ एड्रेस। ठीक है, जाहिर बात है कौन से एड्रेस पे पहुंचना है उसको? केयर ऑफ एड्रेस पे पहुंचना है, बिकॉज हमारे पास में मोबाइल नोड उस पर्टिकुलर लोकेशन पे कहाँ घूम रहा है, आपको पता है इसके बारे में? नहीं पता है। मोबाइल नोड उस फॉरेन नेटवर्क में कहाँ घूम रहा है, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। ओके, सो व्हाट विल बी द डेस्टिनेशन एड्रेस? फॉरेन एजेंट का एड्रेस, और फॉरेन एजेंट का एड्रेस क्या है आपका? केयर ऑफ एड्रेस है। ठीक है, तो केयर ऑफ एड्रेस, तो आपका पैकेट जो था यहाँ पे आ गया। यहाँ पर आने के बाद में व्हाट विल बी द प्रोसीजर? whenever any router receives a packet, it will receive the packet, it will open it up। ठीक है, तो ये वाला जो आउटर कवर है ये निकाल देगा। आउटर कवर में क्या था? कहाँ से आया भाई? होम एजेंट के पास से। जाना कहाँ है? फॉरेन एजेंट। हाँ, मैं फॉरेन एजेंट हूँ। ठीक है, तो ये आपका आउटर जो पैकेट है वो निकल गया। आउटर पैकेट निकलने के बाद में कौन सा पैकेट निकला अंदर से? ये वाला पैकेट। अब ये वाला पैकेट इसके पास में आ गया। ठीक है, ये वाले पैकेट में सोर्स क्या था? सोर्स आपका सीएन था। ठीक है, अच्छा सीएन से आया है, यानी कि कोई कोई करस्पॉन्डेंट नोड है। ठीक है, कहाँ जाना है? तो बोलेगा भाई मुझे तो मोबाइल नोड के पास में जाना है। ठीक है, तो मोबाइल, अच्छा वो मोबाइल नोड, अच्छा वो तो हमारे एरिया में घूम रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? आपका फॉरेन एजेंट विल फॉरवर्ड दैट पर्टिकुलर पैकेट इनटू द फॉरेन नेटवर्क टू योर मोबाइल नोड। ओके, तो यहाँ से आपका सीधा पैकेट चले जाएगा मोबाइल नोड को, यानी आपने जो पैकेट भेजा था एक पर्सन को जो कि अपनी लोकेशन पे नहीं था लेकिन दूसरी जगह था। ओके, तो दूसरी जगह होने के बावजूद, फॉरेन नेटवर्क में होने के बावजूद भी आपका पैकेट उसको मिला, आपका पैकेट उसको मिला। ओके, सो ये है आपका आईपी डिलीवरी, आईपी पैकेट की डिलीवरी कैसे होती है। अच्छा, अच्छा, ये सारी चीज पॉसिबल कैसे हुई? यूजिंग मोबाइल आईपी। ठीक है, तो मोबाइल आईपी था तभी तो ये चीज पॉसिबल हुई, अदरवाइज क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला आपको? इनिशियली यू आर नॉट एबल टू यूज द इंटरनेट आउटसाइड, योर मोबाइल नोड इज स्टिल यूजिंग द इंटरनेट, योर मोबाइल नोड इज स्टिल यूजिंग द इंटरनेट आउटसाइड द होम नेटवर्क। तो होम नेटवर्क में पहले था, अब जब मूव होके यहाँ पर आ गया तब भी इंटरनेट यूज कर पा रहा है। विद द हेल्प ऑफ मोबाइल आईपी इट इज डूइंग सो। ओके, तो ये आपके मोबाइल आईपी का कमाल है कि इतना सब कुछ हो रहा है और आप अपने लोकेशन से मूव करके दूसरी लोकेशन पे भी जा रहे हो, मतलब कि बेसिकली ऑन द मूव हो, एंड दे मोबाइल आईपी सपोर्टिंग दी इन मोबिलिटी, आपको मोबिलिटी का सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, मतलब मोबिलिटी क्या मतलब? when you move from one location, from your home location to the outside location, then still you will be able to use the services you are subscribed for। okay, so ये आपका एग्जांपल नेटवर्क है। नाउ लेट अस मूव टू द फॉर एन एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक टॉपिक कवर कर पाएंगे बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम। नाउ वी हैव अ एग्जांपल नेटवर्क इन द फिगर। the CN is connected via router to the internet as are the home network and the foreign network, as you can see वही सेम डायग्राम है बट नाउ वी आर हैविंग एरो मार्क ओवर हियर। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था। ठीक है, सो जस्ट कंसीडर द सेम सिचुएशन। ओके, नाउ वी आर हैविंग सेम सिचुएशन, द एरो मार्क्स आर शोन ओवर हियर। ओके, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया हूँ, जो यहाँ पर मैंने आपको एरो मार्क करके बताया वही चीज। अच्छा यहाँ से जब ये पैकेट एमएन को मिल गया, मैंने इसको इनकम्प्लीट ही रखा, जब पैकेट आपका एमएन को मिल गया, then mn will respond, okay, and absolutely mn will respond to whom? अच्छा, mn को जो पैकेट मिला वो कौन सा पैकेट मिला? mn को जो पैकेट मिला, mn के अंदर सोर्स कहाँ का था? cn का था, राइट?
तो mn के अंदर सोर्स cn का था, डेस्टिनेशन किसका था, mn का था, ठीक है। तो सोर्स में था आपका cn और डेस्टिनेशन में था mn, ठीक है, डेस्टिनेशन में mn था, ठीक है। तो आपका मोबाइल नोड जब रिप्लाई करेगा, जब रिस्पॉन्ड करेगा, तो सोर्स किसको बनाएगा, अपने खुद को बनाएगा सोर्स। और डेस्टिनेशन किसको बनाएगा, नो उसको 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 पैकेट कहाँ से आया है, तो आपका इंटरचेंज हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो इट विल डायरेक्टली रिस्पॉन्ड, it will directly respond to the cn, okay, instead of sending the message to the foreign agent, then foreign agent will send to the home agent, then home agent will send to the cn। तो ये इतना लंबा फेरा करने के बजाय what your mobile node will do, your mobile node will forward the packet directly to the correspondent node, ठीक है। तो उतना लंबा चक्कर मारने के बजाय भाई डायरेक्ट में जा, क्योंकि मेरे पास में उसका आईपी है, your correspondent node may be fixed or may be move, ओके, मतलब ये या तो फिक्स्ड हो सकता है या तो मोबाइल हो सकता है, ठीक है। उस सिचुएशन में उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट भेज देगा रिप्लाई इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द फॉरेन एजेंट, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द होम एजेंट, ओके। ओके सो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। This is the example network in this in this diagram. The it has been shown with the arrow. Okay, you can see the point number one, step number one, in which your correspondent node is sending some data to the mobile node who is present in the home network right now. Ideally, okay. But your mobile node was not present in the home network. So what it will do? Your home agent will forward your packet. Your home agent will forward the packet to the foreign agent in which your mobile node is present via tunnel. Just mark my words, okay? These are the outline I'm telling you. You need to make a proper statement from these outlines. So your cn will forward the packet, your cn will send the packet to the home network of the mobile node, okay? Yes, का home network था, but it was not present in the home network. So your home agent who is connected with that particular home network, so your home agent will forward the packet to the foreign agent which is connected to the foreign network in which your mobile node is present currently now, ठीक है। So via tunnel और through tunnel, तो ये टनल के थ्रू आपका डेटा जाएगा, जाके पहुंच जाएगा आपके फॉरेन एजेंट के पास में, ओके। योर फॉरेन एजेंट विल रिसीव दैट पर्टिकुलर पैकेट and will give it to the मोबाइल नोड। ये आपका स्टेप नंबर 3। आपने इसने आपके फॉरेन एजेंट ने जहां पर भी इस पूरे, अच्छा ये दिखने के लिए इतना छोटा सर्कल है, बट ये फॉरेन नेटवर्क में भी आप कंप्लीट कल्याण, ओके, मे बी कंप्लीट मुंबई, ये आपका इतना बड़ा हो सकता है फॉरेन नेटवर्क, या फिर उससे छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो इतने बड़े एरिया के अंदर इतने सारे यूजर्स में से उस पर्टिकुलर यूजर को जिसके लिए डेटा आया है उस तक पहुंचाना आपके फॉरेन एजेंट का काम है, okay। So your foreign agent will forward the packet to the mobile node properly, and after sending the data to the mobile node, your mobile node will respond, and instead of responding to the foreign agent, then home agent, and then cn, it will directly respond to the cn, okay। As you can see the arrow mark, the fourth step, ये डायरेक्ट भेज रहा है क्योंकि उसको वाया वाया करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसके पास में तो सीएन का तो एड्रेस है, तो उसको मालूम है जब सीएन के पास में आया, हालांकि उसको मिला घूम फिर के, लेकिन जब उसको पता है कि उसका डेटा कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, तो वो यहीं से जाएंगे। इसके ऊपर एक इशू बनता है, ठीक है। इसके ऊपर एक इशू बनता है कि भाई जो मतलब बहुत सारे फायरवॉल और बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस को एक्सेप्ट नहीं करते, ये पैकेट आ कहाँ से रहा है बोले, जब हमने कुछ भेजे ही नहीं। आगे चल के वो चीज आ जाएगी, मैं आपको बताऊंगा, वो चीज मुझे याद दिलाना, हालांकि टॉपिक भी है वो। सो बहुत सारे फायरवॉल इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और कहीं कहीं पर इसकी एम्बिग्यूटी आती है कि ये जब हम लोगों ने पैकेट भेजे नहीं तो ये इसका रिप्लाई डायरेक्ट कैसे रिप्लाई आ रहा है, बिकॉज आपको पता है यहाँ पर इंटरनेट के अंदर बहुत सारे राउटर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे राउटर, बहुत सारे डिवाइसेस बीच में है, तो जो बहुत सारे डिवाइसेस बीच में है, ये इनको ना एम्बिग्यूट सिचुएशन कि भाई जब ये गया नहीं यहाँ से, क्या मिस्टर इंडिया है कि इसका पैकेट गायब होकर चला गया और रिस्पॉन्ड बराबर हम लोग को दिख के आ रहा है, तो ऐसे 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 कैसे पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि उनको तो खाली आते हुए दिख रहा है ना, जब गया पैकेट तो उनको दिख नहीं रहा है, ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जब गया वो तो दिख नहीं रहा है पैकेट, लेकिन उसका उसका रिप्लाई आते हुए बराबर दिख रहा है। सो थोड़ा सा एम्बिग्यूअस सिचुएशन में आ जाते हैं,
और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं रिवर्स टनलिंग, इसको बोलते हैं रिवर्स टनलिंग। तो रिवर्स टनलिंग यूज करते हैं और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। आगे चल के टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। सो ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है, तो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप रीड कर लेते हैं उसको, बिकॉज उसको रीड करना भी जरूरी है। एंड आफ्टर दैट विल गो टू द एजेंट डिस्कवरी, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द आईपी पैकेट डिलीवरी, सिंपल है, जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हूँ वही सब इसके अंदर है। यूर सीएन दैट योर करस्पॉन्डेंट नोड, ओके, your correspondent node is connected via router to the internet. As you can see in the diagram that we have the correspondent node which is connected to the router, ठीक है। मतलब बताने को बताना पड़ता है कि your correspondent each and every node are connected with any kind of router, okay। so होम आपके होम एजेंट को एक होम नेटवर्क को एक होम एजेंट कनेक्टेड है, फॉरेन नेटवर्क को एक फॉरेन एजेंट कनेक्टेड है, और आपके करस्पॉन्डेंट नोड आपकी थर्ड पार्टी जो कि आपके मोबाइल नोड से कम्युनिकेट करना चाहता है, उसको भी एक राउटर कनेक्टेड है, ठीक है, XYZ राउटर कनेक्टेड। होम एजेंट इज इम्प्लीमेंटेड ऑन द राउटर कनेक्टिंग द होम नेटवर्क विद द इंटरनेट। जो वहां पर बताया वो ये होम एजेंट को होम नेटवर्क को होम एजेंट कनेक्टेड है, और फॉरेन नेटवर्क को फॉरेन एजेंट कनेक्टेड है, ओके। द MN इज करेंटली इन द फॉरेन नेटवर्क, एज यू कैन सी द डायग्राम दैट आर मोबाइल नोड इज एंजॉइंग इन द यूरोप, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल बाहर वो ऐश कर रहा है, बाहर घूम रहा है, सो ये मोबाइल नोड इज रोमिंग इन द फॉरेन नेटवर्क राइट नाउ। The tunnel for packet towards the mobile node start at the home agent and ends at the foreign agent. For the foreign agent has the COA in this example. As you can see, the tunnel which you are having right now is connected to the home agent and the foreign agent. So जो टनल रहेगी वो किन दो नोड के बीच में, किन दो राउटर्स के बीच में कनेक्टेड रहेंगी, होम एजेंट एंड फॉरेन एजेंट दोनों को कनेक्ट करेंगी, ओके। और दोनों को कनेक्ट करके जो फॉरेन एजेंट का जो एड्रेस रहेगा वो एड्रेस आपका केयर ऑफ एड्रेस, ये आपकी स्लाइड में बेसिकली है, ओके। मतलब इसको उसने एक्सप्लेन किया है। आगे बढ़ते हैं। अ करस्पॉन्डेंट नोड वांट्स टू सेंड एन आईपी पैकेट टू द मोबाइल नोड। तो आपका जो करस्पॉन्डेंट नोड है ये आपके मोबाइल नोड को डेटा सेंड करना चाहता है, ठीक है। तो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ मोबाइल आईपी वाज टू सपोर्ट हाइडिंग द मोबिलिटी of the MN. CN does not need to know anything about the MN's current location. तो उसको तो उससे कोई मतलब नहीं है, उसका काम है उसको कम्युनिकेट करना है। अब अच्छा मुझे बताओ कि मैं अगर मेरे फ्रेंड को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे XYZ को कॉल करूंगा, या उसको मैंने व्हाट्सएप लोकेशन उसको मैंने व्हाट्सएप के थ्रू कुछ मैंने इमेजेस भेजा, अपने इमेजेस भेजा, कुछ वॉलपेपर्स भेजा, ठीक है। जब मैंने उसको भेजा तो क्या मैं इस बात को मतलब वो करता हूँ कि वो कौन सी लोकेशन पे है, वो कहीं पर भी हो, वो चाहे इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, ठीक है, चाहे अपने घर पर बैठा हो चाहे अपने ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, I don't have to worry about because I'm the correspondent node, okay, right now I'm the correspondent node and I will not worry about the location of the destination, ठीक है। मेरा जो मोबाइल नोड है, जो मेरा फ्रेंड है, वो कौन सी लोकेशन पे है मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैंने क्या कर दिया, यहाँ से सेंड कर दिया, अब वो पैकेट आपका आराम से पहुंच जाएगा उसको, आई एम श्योर अबाउट इट, ठीक है। सो वैसे ही चीज यहाँ पर भी होती है, ठीक है। ये मतलब इसको मतलब ट्रांसपेरेंट, मतलब आपको खाली ये आपका आपका व्हाट्सएप बताते थोड़ी बैठेगा, हाँ भाई आपका जो फ्रेंड है अभी फिलहाल जो है ना वो कल्याण में है एंड नाउ ही हैज रिसीव दिस इमेजेस, ठीक है। वैसा मुझे कुछ उसका लोकेशन वगैरह नहीं बताएगा, ठीक है। वो डायरेक्टली मैंने यहाँ से सेंड कर दिया, जब वो रिसीव कर लेगा तो मुझे यहाँ पे डबल टिक और ब्लू टिक वगैरह आ जाती है, तो मैं समझ जाऊँ तो उसने रीड कर लिया, तो ऐसे। सो दिस मीन दैट CN send आपका जो correspondent node है, it send an IP packet with mobile node as a destination address and CN as the source address। तो उसने जो पैकेट बनाया, यहाँ पर आपका जो CN जो पैकेट बनाएगा, जो CN फॉर एग्जांपल वांट्स टू सेंड वन इमेज, ओके, तो CN आपका जो करस्पॉन्डेंट नोड है यानी कि मैं हूँ, ओके, आई एम सेंडिंग वन इमेज टू माय फ्रेंड, ओके। सो व्हाट आई विल डू, माय फोन विल क्रिएट वन पैकेट, ओके, एक पैकेट आपको बनाएगा, और उस पैकेट में जो सोर्स रहेगा वो सोर्स किसका रहेगा, एड्रेस आपके करस्पॉन्डेंट नोड का। उसके अंदर जो डेस्टिनेशन रहेगा, सो दैट डेस्टिनेशन विल बी द मोबाइल नोड, ठीक है। ये मेरा मोबाइल नोड जो कि घूम रहा है। अच्छा मुझे नहीं मालूम कि मेरा मोबाइल नोड कहाँ पर है, ठीक है, अगेन वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं। सो योर डेस्टिनेशन विल बी द मोबाइल नोड, ओके। तो दो डेस्टिनेशन, दो सोर्स एंड डेस्टिनेशन हम लोगों ने डाल दिए, ओके। द इंटरनेट नॉट हैविंग इंफॉर्मेशन ऑन द करंट लोकेशन ऑफ मोबाइल नोड, कहाँ पर है अभी फिलहाल कुछ पता नहीं है।
route the packet to the router responsible for home network of the, तो बेसिकली जो करने वाला है वो आपका होम एजेंट करने वाला है, बिकॉज ही इज हैविंग एन आइडिया अबाउट द, ही इज हैविंग आइडिया अबाउट दैट पर्टिकुलर नो लोकेशन ऑफ द मोबाइल नोड, आगे आगे चल के उसकी रजिस्ट्री है। और वो जब किसी और लोकेशन, अच्छा ये मोबाइल नोड जब जाएगा ना ये, तो ऐसी इसको ऐसी एंट्री नहीं मिलती। आप किसी किसी ऐसे लोकेशन पे जाते हो जो कि फॉर एग्जांपल आप कोई दूसरी कंट्री में जाते हो, तो आपकी सब चेकिंग होती है, ठीक है। आपके मतलब प्रॉपरली आपकी डिटेल्स वगैरह सेंड की जाती है, आपके मतलब जहाँ पर भी वो है। और फिर मतलब आपका सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि यू नाउ नाउ यू आर करंटली प्रेजेंट इन दिस एरिया, ठीक है, आप अभी इधर फॉरेन कंट्री में हो वगैरह वगैरह। So they also maintain a lot of information regarding the mobile node who is currently present in the foreign network. And this is done using the standard routing mechanism of the internet. तो बेसिकली राउटिंग मैकेनिज्म है जो कि आपका आपके आपके पैकेट को, जो कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचा था, अब उसको प्रॉपरली यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड किया जाएगा, रूट किया जाएगा, राउट किया जाएगा, रूट किया जाएगा, जो भी है। Home agent now intercept the packet knowing that MN is currently not in its home network. तो भाई आपके होम एजेंट के पास में सारी जानकारी होती है, बिकॉज वो यहाँ आपका जो मोबाइल नोड है, आपका जो मोबाइल नोड है वो यहीं से होके गया, तो मोबाइल आपके होम एजेंट को उसकी जानकारी होगी। अच्छा, जब मोबाइल नोड आपका जब फॉरेन नेटवर्क में जाता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके फॉरेन एजेंट के पास में भी होती है, और उसकी इन्फॉर्मेशन आपके होम एजेंट के पास में भी होती है। तो होम एजेंट को अपडेट किया जाता है, सो दैट any packets who are coming to me, who are coming for me, then will be directed to the location at in the foreign network, ठीक है। सो मोबाइल नोड अपनी इंफॉर्मेशन छोड़ के जाएगा कि मैं देखो मैं भी फिलहाल जा रहा हूँ ये XYZ लोकेशन पे जा रहा हूँ। सो if there's any mail, if there's anything, any message for me, then please send it on me, ओके, मेरे ये लोकेशन पे भेज देना। तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है होम एजेंट के पास में। द पैकेट इज नॉट फॉरवर्डेड इनटू द सबनेट एज यूजुअल, आपका पैकेट एज इट इज नहीं होता है, बट इनकैप्सुलेटेड एंड टनल टू द COA। योर पैकेट इज नॉट सेंट एट एज इज, जो पैकेट आपको यहाँ पर मिला है, जो पैकेट आपके CN ने होम नेटवर्क को भेजा था, होम नेटवर्क में भेजा था, दैट पैकेट विल अगेन बी इनकैप्सुलेटेड। योर पैकेट विल बी अगेन इनकैप्सुलेटेड, तो इनकैप्सुलेट और होगा, इसके ऊपर बेसिकली इनकैप्सुलेशन मतलब उसके ऊपर हेडर वगैरह और लगेगा, यानी सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस और लगेगा। तो बेसिकली मैं बोलूंगा तो चलो ये एक और हमने लगा दिया पैकेट, इसको एक बड़े और डब्बे में कर दिया बंद, और उसके ऊपर अब हमने लेबल चेंज कर दिया, ठीक है, मतलब उसके ऊपर लेबल हमने दूसरा लगा दिया, ठीक है। तो अब उसके ऊपर लेबल आपका लग गया कुछ और, सोर्स कुछ और कर दिया हम लोग ने, डेस्टिनेशन और कर दिए। सोर्स बेसिकली आपका यही रहेगा, और डेस्टिनेशन कौन हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा, यानी कि फॉरेन एजेंट हो जाएगा। लेट अस सी क्या करते हैं। A new header is put in front of the old IP header showing the COA, that is the care of address, as new destination and HA as the source, ठीक है। तो source कौन बना, home agent बना, ठीक है। You can see the diagram, who will become the source now, the source will become the HA। अच्छा, जब पैकेट यहाँ से निकला था तो source कौन था, the source was CN, okay, and the destination was MN, okay। बट हम लोग ने एक और ऊपर से बॉक्स लगा दिया, उसके ऊपर एक चिट्ठी चिपका दिए, कहना भाई अब सोर्स कौन है, अब सोर्स होम एजेंट है। अच्छा, जो पहले वाला पैकेट है वो अभी भी अंदर है, हाँ, उसको अभी कुछ हुआ नहीं है, हम लोगों ने उसको टैम्पर्ड नहीं किया है। तो उसके ऊपर हमने चिट्ठी लगा दी है कि भाई सोर्स ना होम एजेंट है, और डेस्टिनेशन जो है ना वो केयर ऑफ एड्रेस है, यहाँ पर आपका केयर ऑफ एड्रेस है, ओके। योर डेस्टिनेशन इज द केयर ऑफ एड्रेस ऑफ द फॉरेन एजेंट, ओके। तो यहाँ पर आपका सोर्स भी आ गया, आपका डेस्टिनेशन भी आ गया, ठीक है। स्टेप 2 लिखा हुआ है, ठीक है। द फॉरेन एजेंट नाउ डिकैप्सुलेट द पैकेट, ओके। वहां पर आपका फॉरेन एजेंट व्हाट विल डू, योर फॉरेन एजेंट यहाँ क्या करेगा, जो पैकेट यहाँ पर रिसीव होगा उस पैकेट को क्या करेगा, डिकैप्सुलेट करेगा। तब मतलब डिकैप्सुलेट क्या करेगा, मतलब ये जो बाहर का जो पैकेट है, जो बाहर का आउटर कवर है, इट विल बी रिमूव बाय द फॉरेन एजेंट, ओके। when it will be removed by the foreign agent, then it will receive this packet inside it, okay। तो ये वाला इसको दूसरा अंदर का ओल्ड पैकेट मिलेगा, मतलब ओल्ड उसको हेडर फुटर मिलेगा, ठीक है। जब उस पे चेक करेगा, जब उस पे चेक करेगा तो पता चलेगा भाई ये तो आया तो ये CN से है, उसके ऊपर ओल्ड एड्रेस क्या था, उसके ऊपर ओल्ड एड्रेस CN का था, और न्यू सॉरी उसके ऊपर सोर्स एड्रेस किसका था, CN का था, और डेस्टिनेशन किसका था, MN का था। तो यहाँ पर आपका CN और MN उसको नजर आएगा, अच्छा CN से आया है, ओके।
फिर ये क्या करेगा, कहाँ जाना है, एमएन के पास में, हाँ एमएन तो हमारे पास में, फिर एमएन के पास में फॉरवर्ड कर दिया। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। The foreign agent now decapsulate the packet and that is remove the additional header and forward the original packet with CN as source, and MN as destination. वही old वाला packet मिला to the mobile node, the step 3 which you have seen right now. Okay. Sending packet from mobile node to the CN is much simpler. अच्छा अब क्या जा रहा है, रिप्लाई जा रहा है, ठीक है। अब मोबाइल नोड से सीएन को रिप्लाई जाएगा। द मोबाइल नोड सेंड द पैकेट एज यूजुअल विद इट्स ओन फिक्स्ड आईपी एड्रेस एज सोर्स एंड सीएन's एड्रेस एज डेस्टिनेशन, ठीक है। स्टेप नंबर 4 यू कैन सी। तो नाउ सेंडिंग द रिप्लाई इज वेरी सिंपल फॉर मोबाइल नोड। Sending a reply for mobile node is very simple. You can see the step number 4. So it will directly send via the step number 4 जा रहा है, ठीक है। उसको अब उसको ये गुफा में से जाने की और टनल में से जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस केयर ऑफ एड्रेस को लेके फॉरेन एजेंट के थ्रू होके होम एजेंट के पास जाना, फिर होम एजेंट से वापस से सीएन के पास में आना, मतलब वापस अपने इसके पर आना, ऐसी अब कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज हमको तो रास्ता पता चल गया। अब ना मैं तो ऐसे भी जा सकता हूँ भाई, ठीक है। तो हाँ स्टेप नंबर 4 हो गया। हेयर सीएन इज फिक्स्ड नोड इफ सीएन वर आल्सो अ मोबाइल। अच्छा देखो ये सिचुएशन ना कॉम्प्लेक्स हो सकती है, बट ये सिचुएशन एक्चुअली पूछता नहीं है, बट अगर पूछा तो जो जो यहाँ पर हो रहा है वो वहां पर भी होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो सीएन है वो क्या है, फिक्स्ड नोड है, इट इज नॉट मूविंग, इसके लिए वो डायरेक्ट आ गया, ठीक है। स्टेप नंबर 4 डायरेक्ट इट हैज रिसीव टू द सीएन। लेकिन इफ सीएन वर आल्सो अ मोबाइल नोड, वो भी अगर घूम रहा है, दो घूमने वाले अगर दो घूमने वाले बंदे अगर बात कर रहे हैं, अगर आपस में डेटा सेंड कर रहे हैं, तो वहां पर आपका दोनों जगह मोबाइल आईपी का टर्म्स अप्लाई होंगे, ठीक है। इफ सीएन वर आल्सो अ मोबाइल नोड residing in a foreign network, the same mechanism would apply now in other direction also, ठीक है। तो जो मैकेनिज्म वी हैव अप्लाइड फॉर दिस मोबाइल नोड, सो वो सेम आपका जो मैकेनिज्म अप्लाई होगा यहाँ पर भी। ये आपका फिर सीएन नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब आपका जो सीएन रहेगा वो भी क्या बन जाएगा, एमएन बन जाएगा, बिकॉज सीएन नोड दैट्स अ करस्पॉन्डेंट नोड, द पर्सन टू हुम योर मोबाइल नोड इज कम्युनिकेटिंग, तो उसका हम लोगों ने ऐसे नाम दे दिया है सीएन, दैट इज करस्पॉन्डेंट नोड। इफ योर करस्पॉन्डेंट नोड इज ऑल्सो मूविंग and also currently in the foreign network, it means other than the home network, okay। so उसके लिए भी ये सेम प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा जो कि हम लोगों ने मोबाइल नोड के लिए अप्लाई। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये पूरा कंप्लीट होने के बाद ही मैंने आप लोगों को पूछा ये समझ में आ रहा है कि नहीं। सो ये आईपी पैकेट ये आईपी पैकेट डिलीवरी है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आईपी पैकेट डिलीवरी, या सिंपली आता है आईपी डिलीवरी, ठीक है। यानी आपका आईपी पैकेट कैसे डिलीवर होता है ये आपको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। सो इस तरीके से आपका आईपी पैकेट डिलीवर होता है, ध्यान रहेगा। ये डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 5-10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछता है आईपी पैकेट डिलीवरी का। तो इसके लिए ये डायग्राम को अच्छे से एकदम दिमाग में भर लो, अच्छे से बिठा लो। डायग्राम बहुत सिंपल है, एक दो बार ट्राई करेंगे आ जाएगा डायग्राम, कोई नहीं है। इसका जो मैंने आप लोग को एकदम स्टोरी लाइन में जो आपको मैंने इसका एक्सप्लेन किया हूँ, उसी उसी इसमें आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और ये जो स्लाइड है, स्लाइड नंबर 1, इसको मतलब ये जो स्लाइड है बेसिकली इट इज रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस आईपी पैकेट डिलीवरी डायग्राम। देन ये स्लाइड 1 2 देन 3, ये 3 स्लाइड में मैंने इसको पूरे 4 स्टेप एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। सो यू कैन रेफर दिस, मैंने इसको एकदम डिटेल में लिखा हूँ, डिटेल में लिया हूँ, सो दैट यू कैन रेफर दिस एंड यू कैन हैव द आंसर फ्रॉम दिस स्लाइड ऑनली, ठीक है। सो आई होप सो कि आज के लिए इतना काफी है। देन टुमारो विल स्टार्ट विद द एजेंट डिस्कवरी, ओके। मतलब एजेंट डिस्कवरी मतलब ये कि जब आपका मोबाइल लोड अब आपका जब मोबाइल लोड यहाँ से जब जा रहा है, घूमते 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 जब किसी फॉरेन एजेंट में जा रहा है, तो जब फॉरेन नेटवर्क में जाएगा तो वहां जाके उसको किसी ना किसी एजेंट को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। एजेंट को पकड़ने के लिए दो तरीके हैं, या तो एजेंट अपने आप को क्या करे, अपने अपने आप को बताए, ठीक है, अपने आप को बताए, अपने आप को क्या करे, पब्लिसाइज करे, तो जिसके थ्रू पता चलेगा। और या तो मोबाइल नोड खुद ढूंढे, जगह जगह जाके वहाँ एजेंट को डिस्कवर करे। सो वी हैव टू मेथड, टू वे फॉर एजेंट डिस्कवरी इज दैट वन इज द एजेंट एडवर्टाइजमेंट और दूसरा है एजेंट सॉलिसिटेशन, ठीक है। सो विल सी दीज टू टर्म्स, ओके, टुमारो। एजेंट डिस्कवरी
उसके अंदर एजेंट एडवर्टाइजमेंट, टू टू मेथड्स है, एक एजेंट एडवर्टाइजमेंट है और दूसरा, अच्छा एजेंट एडवर्टाइजमेंट का पैकेट होता है, पैकेट फॉर्मेट है, मैंने जस्ट डाल दिया हूँ सो दैट आपको दिखे कि हाँ ये एक पैकेट फॉर्मेट होता है। जब एजेंट अपने आप को एडवर्टाइज करता है, एजेंट एडवर्टाइज क्यों करेगा अपने आप को, कि अगर कभी उस पर्टिकुलर एरिया में कोई बाहर से बंदा आता है तो वो उसको पता चल जाएगा कि हाँ कि यहाँ का एजेंट ये है, ठीक है। तो इस तरीके से एजेंट अपने आप को एडवर्टाइज करता है। तो एडवर्टाइज करने के लिए जो पैकेट सेंड करता है उस पैकेट का फॉर्मेट है। प्लस मोबिलिटी एक्सटेंशन, नीचे वाला इसका मोबिलिटी एक्सटेंशन है, ठीक है। और ये आपका नॉर्मल वाला आईसीएमपी पैकेट रहता है शायद। बाद में एजेंट सॉलिसिटेशन है, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद में रजिस्ट्रेशन है, ये टॉपिक बता रहा हूँ आप लोग को मैं। जब एजेंट किसी दूसरे इलाके में जाता है, जैसे फॉरेन एजेंट में गया तो उसको वहां पर भी अपने आप को रजिस्टर करना होता है। जब वो वहां पर रजिस्टर करेगा अपने आप को, तो वहां का भी रजिस्ट्री में आएगा और अपने होम एजेंट की भी रजिस्ट्री में आ जाएगा। सो होम एजेंट को पता चल जाएगा कि हाँ मेरा बंदा यहाँ से निकल के भाग के उस पर्टिकुलर लोकेशन पे गया, तो वो अभी अपने लोकेशन से अपडेट हो जाएगा। अच्छा, फिर फॉर एग्जाम्पल वो उस फॉरेन नेटवर्क से, फॉर एग्जाम्पल था वो एग्जाम्पल चाइना में था, चलो आपका फॉरेन नेटवर्क जो था आपका चाइना था, तो चाइना में था, अब चाइना से होके वो चला गया रशिया, ठीक है। जब रशिया जाएगा तो रशिया के अंदर वो न्यू है, तो क्या करेगा एजेंट डिस्कवरी के थ्रू, क्या करेगा अपने आप को पहले वहां के एजेंट से मिलेगा, अपने आप को पहले क्या करेगा रजिस्टर करेगा। जब रजिस्टर करेगा तो रशिया वाला उसको रजिस्टर भी करेगा और उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजेगा, होम एजेंट पे भी भेजेंगे, ठीक है। तो जहां भी जाएगा उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो विद द हेल्प ऑफ दैट रजिस्ट्रेशन, your home agent will be having the information, updated information about the particular mobile node। तो जहां भी घूम बेटा तो वो रजिस्ट्रेशन पहले करना है, और जब रजिस्ट्रेशन करेगा then my home agent will come to know about your current location, okay। And when my home agent will come to know your current location, then all the people can send their messages directly to the, मतलब उसको सेंड कर सकते हैं, हमको पता रहेगा, ठीक है। then we have few diagrams, okay। देन रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट कैसी होती है, उसका पैकेट फॉर्मेट होता है, रजिस्ट्रेशन का रिप्लाई क्या होता है, उसका पैकेट फॉर्मेट क्या होता है, और उसके रिप्लाई कोड्स क्या होते हैं। टनलिंग एंड इनकैप्सुलेशन जो हम लोगों ने भी पढ़ा, इनकैप्सुलेशन होता है टनलिंग, तो उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में एक प्रॉब्लम आपको मैंने बताया था, वो प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए रिवर्स टनलिंग कॉन्सेप्ट है, वाइवा क्वेश्चन भी है, व्हाट इज रिवर्स टनलिंग। बाद में फिर रूटिंग क्या है, लास्ट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज रूटिंग और राउटिंग। इन राउटिंग हमारे पास में जो वाइड नेटवर्क था सीएन के अंदर, उसमें हमारे पास दो थे, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और लिंक स्टेट राउटिंग। यहाँ पर हमारे पास में दो है, वन इज DSDV, दैट इज डेस्टिनेशन सीक्वेंस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, और दूसरा जो हमारा है वो है DSR, दैट इज डायनामिक सोर्स राउटिंग, ओके। तो मैंने अभी स्लाइड्स प्रिपेयर किया नहीं हूँ, सो ये आपको मैंने बता दिया हूँ सो दैट आपको भी थोड़ा सा आइडिया रहे। सो जो हमारा राउटिंग एल्गोरिथम अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो हम लोग ये पॉइंट पे कंप्लीट, हमारा जो सेकंड सेक्शन है इस चैप्टर का ये हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा थर्ड सेक्शन तो और टाइम लेंगे, ये आपका काफी बड़ा चैप्टर है, ओके। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, 10:48 हो गए, इनफ है। हिना अंसारी, ओके हिना, you can send me the recordings after this lecture with proper permission, thank you sir।